Hello dear TYBSc microbiology students, welcome to the another video lecture of immunology second, and finally the last point of the chapter 3 is here. Finally we will complete the chapter 3 of your syllabus. So this point is known as the Jones hemolytic plaque assay, and with this point we will conclude the chapter 3. Now the Jones hemolytic plaque assay, it was invented by the two scientists, which was Jern and Nordin. They both have contributed this theory or this assay, and they have used it to detect the presence of antibody producing cell. Up till now, whatever procedures we have learned, in them we have seen either we detect the presence of antigen, either we detect the presence of antibodies, or lastly in the ELISpot we detect the presence of the cytokines or the cytokine producing cell. But in this technique we are going to directly detect the presence of the antibody producing cell. So it is a complicated procedure to understand, and I will tell you the two visions of this theory. Okay, one will be the short form of the procedure and another one will be the large form of that procedure. So let's start. I will just introduce you to the theory or the assay. So this assay involves the detection of the antibody producing cell. So what is done, I will tell you briefly. Okay, what exactly is done. So firstly the mice is killed. Okay, mice को kill किया जाता है. After that his abdomen is stored, and from that abdomen the spleen, you know, the spleen is the site for, it is a lymphoid organ, so it is the site for the major antibody producing cells. Okay, so spleen cells जो होती है, they are taken, that spleen cells are taken which has the lymphocytes in them, and after that that spleen cells are mixed with the sheep RBC. You can see here, they are mixed with the what, spleen cells are taken and they are mixed with the sheep RBCs. Okay, sheep RBCs as a antigen. Okay, as a source of the antigen. Now that and sheep RBC and the spleen cells are mixed in the molten agar. Okay, molten agar, and after that this molten agar is poured in the petri dish. Okay, sterile petri dish. Now after the solidification of the molten agar, there is the addition of the complement. Okay, complement is added, and after that complement addition the plaques are detected. Okay, why? Because as I told previously also, complement के एडिशन के बाद क्या हो जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होने लगती है. तो लिम्फोसाइट्स क्या करेगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट की मदद से जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी वो लाइस करेगी किसको, द एंटीजन्स. कौन सी एंटीजन्स, शिप आरबीसी. ये जो पूरा कलर रेड आएगा पेट्री डिश पे वो शिप आरबीसी की वजह से आएगा, और जहाँ पे भी शिप आरबीसी को लाइस किया जाएगा बाय यूजिंग द एंटीबॉडीज और द एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इफेक्ट वहाँ पे आपको क्या दिखेगी, प्लाक्स दिखेगी या क्लियर एरिया दिखेगा. ओके, सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डिटेक्ट द plaques or the antibody producing cells through that plaques. Okay, तो ये हुई शॉर्ट फॉर्म में प्रोसीजर. अब मैं आपको इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है और उसका स्टैंडर्ड ग्राफ कैसे बनाया जाता है, आई एम गोइंग टू टेल यू. तो किया क्या जाता है, पहले तो बहुत ही क्रूएल टाइप ऑफ प्रोसीजर इज दिस. यहाँ पे क्या किया जाता है, माइस को पहले एक जार में बंद किया जाता है जिसमें एक इथर में डिप किया हुआ कॉटन बॉल जो होता है वो उसमें रखा जाता है. माउस को किल किया जाता है. ठीक है, वेरी ब्रूटली इट इज़ किल्ड. उसके बाद वो माइस जो है उसका जो है एब्डोमेन से स्प्लीन को निकाला जाता है. उस स्प्लीन को डाला जाता है सलाइन में. दैट सलाइन इज नोन एज दी हैंक्स बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन. ओके, HBBS, उसको HBBS बोला जाता है, नॉट MBBS, HBBS. ओके, HBBS जो होता है इट इज़ अ सलाइन सॉल्यूशन, हैंक्स बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन. ओके, हैंक्स बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है, अब वो जो स्प्लीन है उसको किस में डाला जाता है, मॉर्टल और पिस्टल जो होता है ना, आपको पता है ना, उसको खलबत्ता बोलते हैं हम मराठी में. तो दैट खलबत्ता और द मॉर्टल एंड पिस्टल में डाला जाता है स्प्लीन को, उसको क्रश और ग्राइंड किया जाता है. ठीक है, इतना ग्राइंड कि उसकी पेस्ट बननी चाहिए इंडिविजुअल सेल्स की. ठीक है, पेस्ट बनने के बाद फिल्टर पेपर डाल के उसको फिल्टर आउट किया जाता है, और थोड़ा सा बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन डाल के और ज़्यादा फिल्टर आउट किया जाता है ताकि सेल जो हो अगर अटक जाए फिल्टर पेपर में तो वो निकल आए. ठीक है,
तो ये किया जाता है। आफ्टर दैट वो जो सस्पेंशन बना है सेल का, ठीक है, वो आपको लेना है। अब क्या किया जाता है, ऐसे सपोज मैंने 4 ट्यूब्स ली है, ठीक है, 4 ट्यूब्स में आई एम गोइंग टू ऐड द HBBS, ठीक है, 99 ml मैंने HBBS डाल दिया, या फिर 0.9 ml मैंने HBBS। अब मुझे थोड़ा ज़्यादा बनाना है तो 9 ml मैंने HBBS हर ट्यूब में डाल दिया। HBBS मतलब क्या, इट इज़ अ बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन, ओके। तो मैंने ये डाल दिया 9 ml हर ट्यूब में, ठीक है। इसके बाद जो मैंने ये मॉर्टल पिस्टल में बनाया हुआ है सेल सस्पेंशन है, वो मैंने कितना डालना है, 1 ml पहली ट्यूब में, ठीक है। उसके बाद में इसमें से निकाल के दूसरे में 1 ml, दूसरे में से निकाल के तीसरे में, तीसरे में से निकाल के चौथे में 1 ml, ठीक है, और लास्ट का मैंने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने क्या किया, पहले सलाइन लिया, सलाइन में क्या ऐड किया, सेल सस्पेंशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसमें डालना है शिप RBC। कितना डालना है शिप RBC, 0.1 ml हर ट्यूब में, ठीक है, हर ट्यूब में मैंने 0.1 ml क्या डालना है, RBC, किसकी, शिप RBC, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, मोल्टन अगार इन ट्यूब्स में डालना है, जहाँ पे क्या क्या है, पहले मैंने डाला हुआ है स्प्लिन सेल्स प्लस सलाइन प्लस शिप RBC, ठीक है। ये सब चीज़ों के साथ अब क्या डालना है, मुझे मोल्टन अगार डालना है, ठीक है। मोल्टन अगार के साथ ये मिक्सअप करके डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में ये लोगों को मुझे पोर करना है, ठीक है। प्लेट्स को अच्छे से लेबल भी किया, प्लेट नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, प्लेट्स में ये डाल दिया। उसके बाद प्लेट्स को मैंने ऐसे ही रख दिया जब तक ये मोल्टन अगार हार्ड नहीं हो जाता, ठीक है। हार्ड होने के बाद मैंने क्या करना है, इन प्लेट्स को लेना है, जो मैंने ये जो बनाया हुआ है पूरा सॉल्यूशन के साथ साथ, मतलब जो पहले मैंने ट्यूब्स ली थी, ट्यूब्स में सस्पेंशन सलाइन डाला था, सस्पेंशन डाला था, उसके बाद मैंने RBCs डाली थी, उसके बाद मैंने क्या डाला था, मैंने उसमें मोल्टन अगार डाला था, ठीक है। लेकिन कैसे डाला था, क्योंकि इतना सारा सस्पेंशन मुझे नहीं चाहिए, मैंने बस 0.5 ml जो है हर ट्यूब का लिया और मोल्टन अगार में डाल दिया, ठीक है, मिक्स कर लिया मोल्टन अगार के साथ, ठीक है। मोल्टन अगार के साथ मिक्स करने के बाद मैंने उनको प्लेट्स में डाल दिया, ठीक है। हर ट्यूब को मैंने अच्छे से लेबल किया था, हर ट्यूब के प्लेट को भी अच्छे से, जिस ट्यूब का सॉल्यूशन मैंने जिस प्लेट में डाला है उसको भी अच्छे से लेबल कर लिया, उसको हार्ड होने दिया। उसके बाद मैंने 1 घंटे के लिए उन प्लेट्स को 37 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, ठीक है। उन प्लेट्स में क्या है, RBCs है और स्प्लिन सेल्स है जिसमें लिम्फोसाइट्स है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स कौन सी, T सेल B सेल, ठीक है। नाउ उसके बाद 1 आवर होने के बाद मैंने उनको रूम टेम्परेचर पे रख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, जो पिग होता है, गुनिया पिग, उसका मैंने 2 ml कॉम्प्लीमेंट लिया, मतलब इन शॉर्ट मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया, कितना लिया, 2 ml, और हर प्लेट के ऊपर जो है कॉम्प्लीमेंट डाल दिया, ठीक है। 2 ml हर प्लेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट डाल दिया, कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन ही होगा वो, तो वो मैंने डाल दिया। उन प्लेट्स को मैंने इंक्यूबेट किया 37 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऐड किया हुआ है, वो कॉम्प्लीमेंट के साथ प्लेट्स को मैंने कहाँ पे रखा, इंक्यूबेटर में फॉर 30 मिनट्स अगेन। उसके बाद क्या करना है, उन प्लेट्स को लेना है जिसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, उन प्लेट्स को मैंने रूम टेम्परेचर पे रख देना है, कितनी मिनट्स, अगेन 30 to 60 मिनट्स, 1 घंटे के लिए रख दो आप। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट जो है ऑब्वियस सी बात है, वो मैंने कितना ऐड किया था, 2 ml, तो थोड़ा सा लिक्विड दिखेगा आपको अगर प्लेट पे, तो वो मैंने लिक्विड जो है वो पोर कर लिया, कॉम्प्लीमेंट का काम हो चुका है तो मैंने पोर कर लिया, ठीक है उसको। अब मैंने क्या करना है, प्लेट्स को अच्छे से वॉश करना है विद द सलाइन, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड करना है, कॉम्प्लीमेंट को मैंने फेंक दिया, अभी मैंने सलाइन ऐड करके प्लेट्स को थोड़ा सा रिंस करके अगेन वो फेंक दिया सलाइन। अब मैंने उसमें ऐड करना है बेंजाडाइन, बेंजाडाइन जो हमने एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे में भी किया था, वैसे यहाँ पे बेंजाडाइन डालना है, ठीक है। बेंजाडाइन डाला, ठीक है। बेंजाडाइन क्या करता है, ब्लू कलर देता है सॉल्यूशन को, जो RBC लाइस हो चुकी है उनको नहीं दे पाता, वो जहाँ पे भी RBC है उसके साथ ही रिएक्ट करके ब्लू कलर देता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी RBC लाइस हो चुकी है वहाँ पे आपको क्लियर जोन मिलेगी, बाकी प्लेट आपको क्या मिलेगी, बाकी प्लेट आपको ब्लू कलर की दिखेगी, जैसे हम आयोडीन का किया था हमने अमाइलेज में, वैसे सेम आपको दिखेगा ब्लू कलर क्लियर जोन अगेंस्ट द ब्लू बैकग्राउंड।
तो वही जो क्लियर जोन है वो है प्लाक्स, और वो आपको मेजर करने हैं, और कितने कॉन्सेंट्रेशन पे कितने प्लाक्स आए उसका आप एक स्टैंडर्ड ग्राफ बना सकते हो। और ऐसे ही आप सैंपल सेल जो है वो डिटेक्ट कर सकते हो इन द सैंपल। फॉर एग्जांपल कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल हो सकती है, लिम्फोसाइट्स हो सकती है, या बैक्टीरियल सेल भी हो सकती है, वो भी आप एज अ सैंपल लेके, या फिर आपको सैंपल में से बैक्टीरियल सेल है या नहीं वो भी डिटेक्ट आप कर सकते हो यूजिंग दिस एसे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, करना क्या है इस होल टेक्निक में, पहले ट्यूब्स लेनी है। पहले तो उसमें पहले क्या डालना है, 9 ml ऑफ सलाइन। ठीक है, 9 ml सलाइन डाला आपने हर ट्यूब में। उसके बाद उसमें आपने ये जो सेल सस्पेंशन बनाया था स्प्लीन का, माइस का, ठीक है, वो आपने डालना है। ठीक है, एक एक कितना सीरियली डाइल्यूट करना है उसको। पहले में 1 ml डाला, पहले में से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में, और तीसरे में से चौथे में 1 ml आपने सेल सस्पेंशन डाला। उसके बाद आपने उसमें क्या डाला, यू आर गोइंग टू ऐड 0.1 ml RBC इन ईच ट्यूब। ठीक है, 0.1 ml RBC ऐड किया। उसके बाद इसमें से मैंने 0.5 ml लिया, हर ट्यूब में से 0.5 ml। अब ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा अराउंड 9.1 ml समथिंग। ठीक है, इसमें से मैंने 0.5 ml लेना है, और हर 0.5 ml को किस में डालना है, मोल्टन अगार में डालना है, और उस अगार को पोर करना है ऑन द प्लेट्स। ठीक है, इस मोल्टन अगार में क्या है, 0.5 ml जो हमने पूरा ये जो सीरियल डाइल्यूशन किया है वो सैंपल है। ठीक है, 0.5 ml मिक्स करके लेना है और पोर कर लेना है। ठीक है, पोर करने के बाद उसको इंक्यूबेट करना है 1 आवर एट 30 हार्ड होने के बाद। ठीक है, पहले तो सॉलिडिफाई होने देना है अगार को, उसके बाद 30 मिनट्स के लिए आपको रख देना है इन द इंक्यूबेटर। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 1 आवर, सॉरी फॉर 1 आवर एट 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपने क्या करना है, उन प्लेट्स को लेना है, उस पर कॉम्प्लीमेंट डालना है। कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन किसका है, गुनिया पिक का। ठीक है, वो कितना डालना है, 0.5 ml। ठीक है, या नॉट 0.5 ml, 2 ml डालना है। ठीक है, 2 ml डालने के बाद वो कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन ऐसे रहेगा ऊपर, उसको आपने रख देना है 37 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद फिर से उसको रिमूव करके रूम टेम्परेचर पे रखना है 30 to 60 मिनट्स या फिर 1 आवर के लिए। ठीक है, उसके बाद वो कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन जो है वो जो एक्सेस था ऊपर वो हमने रिमूव कर लिया। उसके बाद उस पर सलाइन डाल के अगेन वॉश करके रिंस करके अगेन हमने डाल दिया। उसके बाद वो प्लेट्स पे आपने डालना है बेंजाडाइन। बेंजाडाइन डालने के बाद अगेन वॉशिंग करनी है एक्सेस रिमूव करने के लिए। सलाइन से अच्छे वॉशिंग करने के बाद यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द प्लाक्स, क्लियर प्लाक्स अगेंस्ट द ब्लू बैकग्राउंड। डार्क ब्लू बैकग्राउंड आपको दिखेगा, उसमें क्लियर प्लाक्स आपको मेजर करने हैं, और उससे आप क्या बनाओगे, स्टैंडर्ड ग्राफ। दैट्स इट। तो ऐसे ये परफॉर्म किया जाता है। दिस ऐसे इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द स्प्लीन। ओके, स्प्लीन ऑफ द माइस। स्प्लीन सेल्स की जगह आप बैक्टीरियल सेल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो भी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हेमोलाइटिक प्लाक ऐसे जो है इट इज़ मेनली यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स। ओके, so that's about it. I hope you have understood this whole concept behind the hemolytic plaques. इसमें क्या डिटेक्ट किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ द एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल। दैट्स इट। सो विद दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू with this point we are going to conclude the chapter 3 of your syllabus. I hope you have understood all the points related with this chapter, and if you feel any query related to any point of this chapter, please do feel free to contact me. Okay, thank you.